Hi students, how are you all? Great, no? Students, today we are going to begin new chapter number 11, transportation in plants and animals. In this lesson, we are going to study about circulatory system in humans. Okay, so in circulatory system, I think heart plays very important role, and in detail we will discuss about the heart. Second part would be the excretion, then transportation of substances in plants. So first of all, we will discuss about the body function. Okay, the body consists of various organ systems. Body consists of various organ systems, just like circulatory system, respiratory system, digestive system. The organ system work in coordination with each other for the smooth functioning of the body. So not a single system just function the body. When we think about the body is functioning and it happens smoothly, there is coordination between this system. When we are talking about the system, different organs are involved in it. When we are talking about the circulatory system, so artery, vein, heart's chamber, each and every cell of the body, they are in coordination, and that's why the things are going to happen. So one of the system in the circulatory system that comprises of the heart, blood and blood vessels. Clear? So when we are discussing about the circulatory system, three components are very important. Heart hai, blood hai and blood vessels hai. Blood is the circulatory fluid. Now you will have the question, ब्लड, यू नो दैट एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, एंड व्हेन वी इंजर्ड तो हमारी बॉडी में से दैट रेड कलर फ्लूइड इज फ्लोइंग एंड आफ्टर सम टाइम देर इज क्लॉटिंग, अपने आप बंद हो जाता है इफ इट इज़ दैट इंजरी इज़ नॉट मेजर. ओके, सो ब्लड क्या है? इट इज़ सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट. फंक्शन क्या है उसका? वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ब्लड ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन में से जो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं, वी आर टेकिंग ऑल द गैसेस, ऑक्सीजन वी आर कीपिंग विथ अस, एंड जो गैस है, जो ऑक्सीजन छोड़ के जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो वी आर ब्रीदिंग आउट. ओके, सो ये जो ऑक्सीजन है, ब्लड, ये ऑक्सीजन, ब्लड कैरी दिस ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द ईच एंड एवरी सेल. रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर. किसका रेस्पिरेशन होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेशन में डाइजेशन हो गया फूड का, वो सिंपलर मॉलिक्यूल में आ गया. वो सिंपलर मॉलिक्यूल अगेन इट विल ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपल मॉलिक्यूल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. इट इज टेकिंग प्लेस इन सेल्स एंड देयर इज जनरेशन ऑफ एनर्जी. सो दिस ऑल थिंग्स आर in coordination with each other, and these things are happening with the help of blood. Air we breathe in reaches every cell of the body. It is circulatory system that helps to transport oxygen as well as food, water and minerals to all parts of the body. Okay, so oxygen का ये role है. Wastes like carbon dioxide and urea are also removed from the body. अब क्या हो गया? respiration हो गया वहाँ पे. अब जो है ये रेस्पिरेशन के, इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस देयर इज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो गया, यूरिया जनरेट हो गया. तो दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, एंड वो भी रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होते हैं. जो कोई जो ब्लड वेसल्स है, जिनको आर्टरी बोलते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है. वेन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है. So in this way, in coordination, this process is going on. Unicellular organisms like amoeba and paramecium, materials move by diffusion in a slow process. Now you will have the question, what is meant by diffusion? So diffusion क्या होता है? एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लूइड बहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ है, मैंने ग्लास में कुछ वाटर रखा है, ठीक है, एंड पाइप लगा के यहाँ पे मैंने बोल लिया है. तो ये ग्लास में से वाटर, अगर बोल नीचे है तो सब पानी नीचे आ जाएगा, बट एक अगर दोनों बैलेंस में है तो दोनों में इक्वल वाटर हो जाएगा, दैट इज डिफ्यूजन. सो इक्वल हो जाना है. इवन कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको भी इक्वल करना है. सो दैट इज डिफ्यूजन. दैट इज
It is happening in amoeba and paramecium. We have seen they are unicellular organism. In human beings and animals, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जैसे ऑक्सीजन है, देन डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यूज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड. प्लांट्स में भी ये सब चीज़ें होती है. This is circulatory system of human being. You can see that you are having the picture of सब कुछ है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, आर्टरी है, वेन है, everything is given over here. You can see it. You can pause your video and you can watch it. Okay. Now we will discuss about in detail about the blood. What is blood? Blood is a fluid medium for transportation. Okay. So blood is a red color fluid that flows in the blood vessels. Blood vessels में से बह रहा है, जैसे छोटे छोटे पाइप है जिसे हम vessels बोलेंगे. It transports digested food from the small intestine to other of the body. Small intestine में कैसे हो जाता है, जैसे हमारा digestion of food हो गया, completed over there. So वहाँ से digested food है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में दिया जाता है एंड डिफरेंट पार्ट्स की सेल्स में उसका रेस्पिरेशन होता है एंड ऑफ द बॉडी एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स. फिर क्या हो जाएगा, CO जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे हो गया, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, वो फिर से लंग्स के पास जाता है एंड लंग्स क्या करता है, लंग्स इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. सो लंग्स क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो ब्रीथ आउट करेगा. It transports digested food from the small intestine to other and all that things. Blood is a special tissue that consists of blood क्या है, tissue है, tissue क्या है, group of cells, cell क्या है, fundamental unit of life. जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनता है वैसे बॉडी सेल से बनता है एंड सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर वाले सेल्स के ग्रुप का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. एंड ब्लड क्या है, blood is also one type of tissue and it is made up of RBC, red blood cell, WBC, white blood cell, then platelets and plasma. Okay, so components of blood you must know: plasma, platelets, RBC and WBC. Now first of all we will discuss about the first component of blood, that is plasma. It's the fluid part of the blood. blood का जो fluid part है, जैसे लिक्विड पार्ट है ब्लड, दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सम प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा. ओके. प्लाज्मा की कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर्स, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल्स. नाउ प्लाज्मा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेड ब्लड सेल्स मीन्स RBC. These are also component of blood. They are biconcave. Concave means ऐसे फूले हुए हैं दोनों साइड से, that is biconcave cells that contain a red color pigment called hemoglobin. So red blood cell क्या है, red blood cell का component क्या है, hemoglobin. हीमोग्लोबिन को हम शॉर्टली वी आर राइटिंग इट HB. ये जो हीमोग्लोबिन है विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर, इसकी वजह से ब्लड को रेड कलर आता है. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन का मेन टास्क ऐसा है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है एंड जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड. Oxygen to form oxohemoglobin and transport O2 to all parts of the body. सो हमें जब नौशिया वगैरह आता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में देर इज़ डिक्रीज इन लेवल ऑफ द HB. आपका HB कम हो जाएगा तो आपको नौशिया आ जाएगा, आपको वीकनेस लगेगा, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक. सो व्हाट हैपन एक्चुअली, व्हाट इज द साइंटिफिक मैकेनिज्म, वो जो ऑक्सीजन चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट टेकिंग प्लेस प्रॉपरली ड्यू टू द लैकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड वी फील टायर्ड, वी हैव द वीकनेस. So we have to take care of HB of your blood and the diagram of RBC I have displayed over here. You can see it, students. Now we will discuss about the white blood cells. The word itself is telling us, जैसे red blood cell था वैसे ये white blood cell है. They are irregular shape. इनका shape irregular होता है and are colorless. So red blood cells are having the red color but WBC are the colorless.
एज दे डोंट कंटेन हीमोग्लोबिन. सो WBC में हीमोग्लोबिन नहीं है. रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन था तो इसलिए उसका रेड कलर था. WBC डोंट हैव दैट हीमोग्लोबिन, सो इट इज़ कलरलेस. दे आर बिगर दैन RBCs. RBCs से बड़े हैं बट दे आर फीवर इन नंबर. उनका RBCs से साइज भले ही बड़ा हो बट दे आर लेस इन नंबर कंपैरेटिवली RBC. Their main function is to destroy germs and fight infection in the body. So this is the defend ministry. ये हमारी बॉडी की क्या है? डिफेंड मिनिस्ट्री है. मीन्स हमारे बॉडी में कुछ जर्म्स आ गए, कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन ऑल दैट थिंग्स दिस WBC आर रेडी टू फाइट, यू नो. So just like army, navy, WBC plays important role. Now third component of the blood is platelets. Now we will discuss about the platelets. ये platelets है क्या? These are cell fragment. सेल के टुकड़ों जैसा है. फ्रैगमेंट मीन्स क्या? Just like pieces. These are cell fragments that help in the clotting of blood. Platelet has the main role to clot the blood. Blood clotting means क्या है? जैसे blood flow हो रहा है तो उसको रोकने का काम दिस प्लेटलेट्स आर डूइंग. दे रिलीज वेरियस सब्सटेंसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ द वुंड. वुंड के वहाँ पे वो RBCs के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड वो वहाँ पे क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करते हैं. ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट. अब तुम्हारा जो भी बॉडी वेट है उसका 8% जो होता है वो ब्लड ऑक्यूपाई करता है. दिस इज GK, यू नो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द. अब हमने क्या देखा? सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, ब्लड वेसल्स है एंड हार्ट है. सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स. दे आर इन कोऑर्डिनेशन एंड प्लेइंग द रोल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड. तो ब्लड का हमने देखा व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? पाथवे टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी. ब्लड फ्लोज इन द बॉडी थ्रू लॉन्ग ट्यूब्स. हम ट्यूब्स बोलते हैं, छोटे पाइप होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. यू कैन कीप इन योर माइंड इन दिस वे. सो ट्यूब लाइक पाइप्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. Blood vessels are divided into 3 types. First one is the artery, second one is the vein and third one is the capillaries. You have to keep it in your mind in this way. Sequence में याद रखो. Arteries है, veins है, capillaries है. Arteries carries oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood and capillaries are joining this arteries and veins to the tissues or cells of the body organ. I hope you are clear with this concept. Okay. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे आर डीप सीटेड. वो क्या है? बहुत अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है. वेंस आर सरफेस, उसके ऊपर वेंस रहती है एंड वेंस कैसे ब्लू कलर का किसी किसी की स्किन पे भी दिखाई देता है, किसी के ऐसे पाम पे दिखाई देता है. ब्लू कलर का स्मॉल जैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो दैट इज़ वेन. बट आर्टरी आर डीप रूट, वो उसके नीचे होता है. वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज. आर्टरीज क्या है? ये जो हार्ट का फंक्शनिंग होता है, हार्ट के प्रेशर पे वो वर्क करता है, इसलिए देर इज़ नो नीड ऑफ वॉल्व्स. वॉल्व्स नहीं होते आर्टरीज में. वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेंस. वेंस में वॉल्व्स प्रेजेंट रहेंगे. पल्मोनरी आर्टरी इज, so pulmonary artery carry deoxygenated blood and pulmonary vein carry oxygenated blood. So you can go through in this way कि ये exception है. Okay, artery तो oxygenated blood ही होता है but pulmonary artery is the only artery which carry deoxygenated blood फ्रॉम द लंग्स में से लेता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेंस. वेंस क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे कैन बी सीन लाइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन. स्किन के सरफेस पे दिखाई देगा हमें वो एज ग्रीनिश ब्लू लाइंस. ग्रीनिश ब्लू लाइंस रहेंगी तो वो वेंस है. दे हैव थिनर वॉल. उनका जो वॉल होता है, जैसे ट्यूब्स अगर हम बोलेंगे तो उनका जो सरफेस पार्ट है, सो वो कैसा होता है? थीन होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज. दे हैव वॉल्व्स टू अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डिरेक्शन ओनली. वॉल्व्स का काम क्या है? वेंस का काम क्या है? एक्चुअली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, तो उनको वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पीछे नहीं आना है, तो उनमें वो जो वन डिरेक्शन वाला फ्लो है वो वॉल्व्स के विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स इट इज रेगुलेट. Okay, pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood from the lungs to the heart.
Now we will discuss about the capillaries. हमने blood vessels का we have discussed about artery, vein. Now third part is the capillaries. These are very thin walled blood vessels that connect arteries to veins. The walls of capillaries are so thin that the diffusion of gases and chemical substances takes place very easily. डिफ्यूजन कैसा है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे आने वाला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, अंदर जाना है, गैस वहाँ से बाहर जाना है, जैसे गैस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बहुत हो गया, वो पास करना है, तो ये डिफ्यूजन हो गया. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो वो बाहर चला गया, दैट इज़ डिफ्यूजन. सो दिस आर द रोल्स. आर्टेरीज और वेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. कैपिलरीज से, कैपिलरीज आर्टेरीज और वेंस की कंपैरेटिवली वेरी थिन होती है. कैपिलरीज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टेरीज टू ऑर्गन्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू वेंस. दोनों को भी जोड़ती है, इवन उनको ऑर्गन के साथ जोड़ा जाता है. सो एंड कैपिलरीज आर थिन कंपैरेटिवली आर्टेरीज एंड veins. Now time to answer. Tick the correct answer. Questions are displayed over here. You are supposed to give answers me in comment box. 7th standard students, you are not watching my videos, you are not giving answers at all. Please do this time. So these are the images of vein के images दिए हैं. तो कि vein ऐसी होती है. कैपिलरी यू कैन सी बहुत छोटा छोटा नेटवर्क है उसका, दैट इज़ कैपिलरी. एंड आर्टेरी यू कैन सी ओवर हियर. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हमने क्या देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओवर हियर. सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर. आई थिंक स्टूडेंट्स आई हैव enhanced your knowledge and you are happy with this video. So thank you for watching my video. Bye bye.